آج ہم اہل بیت اطہار میں سے ہی سیدہ کائنات خاتون جنت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کی دوسری شہزادی ام کلثوم بنت علی ان کے تعلق سے کچھ باتیں آپ کی گوشہ گزار کروں گا۔ ناظرین سامعین محترم، ہم نے پچھلے ایام میں جو ہے حضرت زینب بنت علی کا بھی ہم نے ذکر فرمایا تھا، حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کا بھی ہم نے ذکر کیا تھا، پھر اس کے بعد میں آج ہم ذکر کر رہے ہیں حضرت ام کلثوم بنت علی کا ذکر کر رہے ہیں۔ ناظرین سامعین محترم، سیدہ کائنات خاتون جنت فاطمۃ الزہرا مولا علی المرتضیٰ سے جملہ 5 اولادیں، 3 صاحبزادے اور 2 صاحبزادیاں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ، نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الامين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه الكرام المتقين المخلصين وجميع الاولیاء والصالحین وعلینا معهم اجمعین، اما بعد۔ معزز ناظرین سامعین محترم، ہم تذکرہ صالحات امت کے عنوان سے ایک سلسلے وار ہم سیریز چلا رہے ہیں، اور ان میں ازواج مطہرات اہل بیت اطہار کی مقدس خواتین صحابیات کا ہم ذکر کرتے ہوئے آپ کے سامنے آ رہے ہیں۔ آج ہم اہل بیت اطہار میں سے ہی سیدہ کائنات خاتون جنت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کی دوسری شہزادی ام کلثوم بنت علی ان کے تعلق سے کچھ باتیں آپ کی گوشہ گزار کروں گا۔ ناظرین سامعین محترم، ہم نے پچھلے ایام میں جو ہے حضرت زینب بنت علی کا بھی ہم نے ذکر فرمایا تھا، حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کا بھی ہم نے ذکر کیا تھا، پھر اس کے بعد میں آج ہم ذکر کر رہے ہیں حضرت ام کلثوم بنت علی کا ذکر کر رہے ہیں۔ ناظرین سامعین محترم، سیدہ کائنات خاتون جنت فاطمۃ الزہرا مولا علی المرتضیٰ سے جملہ 5 اولادیں، 3 صاحبزادے اور 2 صاحبزادیاں۔ ایک حضرت امام حسن، حضرت امام حسین، حضرت محسن رضی اللہ تعالی عنہم، اور اسی طرح آپ کی شہزادیوں میں حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا۔ ناظرین سامعین محترم، سیدہ کائنات نے ان دونوں صاحبزادیوں کے نام اپنی بہنوں کے نام پر، نو مولود کے خالاؤں کے نام پر آپ نے نام رکھا تھا۔ آئیے آج ہم نے حضرت زینب کے تعلق سے گفتگو کی تھی پچھلے، اور آج حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا یہ حضرت علی ابن ابی طالب کی دوسری صاحبزادی کے تعلق سے آپ کے سامنے رکھیں گے۔ ناظرین سامعین محترم، حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا آپ جو ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات مبارکہ میں ہی تولد ہوئے، اور حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کا بھی آپ کو شرف حاصل رہا۔ یہ الگ بات ہے کہ کم سنی کی وجہ سے آپ سے احادیث مروی نہیں ہے، بلکہ آپ نے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا جب 5 سال کی عمر کے تھے آپ حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا، تو اس وقت حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنی ظاہری دنیا سے پردہ فرمائے، اس کے بعد میں آپ کی والدہ ماجدہ کا وصال ہوا۔ ناظرین سامعین محترم، آج ایک تحقیقی بات آپ کے سامنے رکھتا چلوں گا، جس کو مؤرخین نے، تاریخ نگاروں نے اپنی اپنی کتب میں جو ہے، امام ابن کثیر وغیرہ دیگر جو ہے نا مؤرخین نے اپنی اپنی کتابوں میں جو ہے، تاریخ میں جو ہے، طبقات وغیرہ میں جو ہے اس بات کو لکھا ہے۔ حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا کا جو نکاح ہوا وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوا، اور اس واقعے کے تعلق سے جو ہے، نکاح کے تعلق سے بہت سارے بات عوام الناس میں یہ بات کہی جاتی ہے کہ کوئی ایسی بات نہیں ہے، حضرت ام کلثوم کا نکاح حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے نہیں ہوا، لیکن یہ بات بالکل غلط ہے، تاریخ کو پڑھیں گے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت مولا کائنات سیدنا علی ابن ابی طالب کی بارگاہ میں جو ہے یہ معروضہ رکھا تھا کہ جو ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا جو فرمان ہے کہ جو ہے کل بروز محشر جو ہے نا تمام لوگوں کے حسب نسب سب منقطع ہو جائیں گے سوائے میرے حسب و نسب کے، یعنی قیامت کے دن بھی جو ہے میری رشتہ داریاں باقی رہیں گی، اور جو ہے میرا حسب و نسب جو میرا ہے وہ باقی رہے گا، اور کل بروز محشر ہر ایک کا حسب و نسب ختم ہو جائے گا سوائے میرے حسب و نسب کے۔ تو اس وقت حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میری یہ خواہش ہے کہ اس حدیث مبارکہ کے مطابق جو ہے، کیونکہ کل بروز محشر
हुजूर से जो मुताल्लिक रहेंगे, जिनका ताल्लुक रहेगा वो मुनक़ते नहीं होगा। तो आपने हज़रत अली इब्न अबी तालिब की बारगाह में जो है ये मारूज़ा रखा कि जो है मेरी ख्वाहिश है कि इस फरमान के मुताबिक कल मेरा भी बरोज़ महशर जो है हुजूर से ताल्लुक कायम रहे, लिहाजा आपकी शहजादी हज़रत उम्मे कुलसूम से मैं निकाह करना चाहता हूँ। हज़रत मौला कायनात की बारगाह में अपनी कहा कि आप राजी अगर हैं, तैयार अगर हैं, आप जिस वक्त राजी होंगे तो मैं उस वक्त जो है निकाह करूंगा, आपके लिए वक्त दरकार है। तो हजरत अली इब्न अबी तालिब करमल्लाहु वजह करीम ने आपने जो है एक वक्त के बाद हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु से जो है अपनी साहिबजादी हजरत उम्मे कुलसूम रजी अल्लाह तआला अन्हा का निकाह कर दिया। और उस वक्त में हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला तकरीबन 40,000 दिरहम जो है ना आपने उस वक्त महर में आपने जो है वो माल को पेश किया। नाज़रीन सामाईन मोहतरम, हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु की उम्र और हजरत उम्मे कुलसूम रजी अल्लाह तआला अन्हा की जो उम्र मुबारक है उसमें बहुत फर्क है। हजरत उम्मे कुलसूम रजी अल्लाह तआला अन्हा कम उम्र थी, लेकिन इसके बावजूद देखिए जिंदगी जो आपने हजरत फारूक आजम रजी अल्लाह तआला अन्हु के साथ गुजारी, और वो जो जिंदगी का जो तर्ज अमल है, वो जो जिंदगी आपने गुजारी है, यकीनन जो है सुबह क़ियामत तक तमाम ख़वातीन के लिए बहुत बेहतरीन रहनुमाई का सबब है। तमाम ख़वातीन के लिए किसकी जिंदगी? हजरत उम्मे कुलसूम रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की जिंदगी। यानी सोच बूझ के एतबार से हो, सलीक़े शियारी के एतबार से हो, कमाल दर्जा रखने वाली खातून में से आपका जो है शुमार होता है हजरत उम्मे कुलसूम रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का। आइए हजरत फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के साथ जब आपका अक़्द हुआ, निकाह हुआ अल्हम्दुलिल्लाह, उसके बाद आपको जो है 2 औलाद हुई फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से। एक वो फर्जंद का नाम था हजरत जैद, हजरत उमर को जो लड़का हुआ हजरत उम्मे कुलसूम रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से, वो उनका नाम रखा गया ज़ैद बिन उमर। और एक साहिबजादी आपको हुई जिनका नाम हजरत फारूक आजम ने हजरत रुक़ैया रखा था आपका नाम। यानी एक जो है हजरत उम्मे कुलसूम ने अपने खालाओं के नाम पर, रुक़ैया जो है हजरत उम्मे कुलसूम रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की खाला थी, तो हजरत उम्मे कुलसूम रज़ी अल्लाह तआला ने क्या किया, अपनी साहिबजादी का नाम रुक़ैया रखा। 2 औलाद आपको फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से हुई। नाज़रीन सामाईन मोहतरम, हमेशा फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के साथ आपने जिंदगी गुजारी, और जो है आपकी हयात तक, फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला की हयात तक, यानी आपने जो साझेदारी निभाई है, जो अपने काबन के साथ रहे हैं, वो जो है जिंदगी बड़ी अच्छी जिंदगी आपकी गुजरी। आप तारीख को पढ़ेंगे, हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आप खुद जो है 12 मरतबा उम्मे कुलसूम रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का जो है आप जिक्र फरमाया करते थे। रिवायत में आया कि एक मरतबा फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हस्बे मामूल, रात के वक्त में आपका ये मामूल था कि अपने हुलिये को बदल कर जो है आप रात में गश्त किया करते थे, रियाया के हालात को मालूम करने के लिए, उनकी जरूरतों को पूरा करने के लिए। एक मरतबा आप जो है हस्बे मामूल अपनी जो है रियाया के हालात मालूम करने के लिए रात में निकले। जब आपका गुजर एक मकाम से हुआ, एक झोपड़ी जो है छोटी सी झोपड़ी थी, वहां पर आपकी निगाह पड़ी और एक शख्स बाहर बैठा हुआ है, परेशान हाल नजर आ रहा था, अरबी शख्स था। तो हजरत फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जो है आप उस वक्त में जो है अमीरुल मोमिनीन है, खलीफती रसूलुल्लाह है, आपने जो है उस वक्त में जो है उस झोपड़ी के करीब जो वो शख्स बाहर बैठा था उससे जाकर जो है सलाम हुई। उसके बाद में गुफ्तगू हुई तो उस शख्स ने कहा कि हम दूसरे मुकाम से हैं, यहाँ पर आए हैं, उमर फारूक नाम, ये खलीफतुल मुस्लिमीन है, अमीरुल मोमिनीन है, हमने इनके मुतालिक सुना है, बहुत बड़ी खैरखा है, मददगार है, हम ये चाहते हैं कल सुबह जो है उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला के पास हाजिर होंगे, वो अमीरुल मोमिनीन है, उनसे हम जो एक अतिया लेकर जो है नजराना लेकर अपने मकाम पर वापस जाना चाहते हैं। वो देहाती शख्स था, वो अपनी, उसके बाद फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला ने देखा कि उस झोपड़ी से जो है ना किसी औरत के जो है दर्द की आवाजें आ रही है, कर्राने की आवाज आ रही है। तो फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला ने उस शख्स से पूछा कि क्या बात है, तो उस शख्स ने जो है वो कहा कि मेरी ज़ौजा है, कहा कि आपको उसकी जरूरत नहीं है। उनकी आवाज सुनकर जो है फारूक आजम रुक गए थे। तो उस वक्त वो देहाती शख्स ने कहा कि आप जाइए, कौन है, मैं आपको नहीं पहचानता, आप जाइए। तो फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला ने जो है काफी असरार किया उन पर। तो उसके बाद उस शख्स ने जो है बड़े शर्माते हुए कहा कि मेरी जो अहलिया है वो जो है हमल से है और वो जो तकलीफ में है वो दर्द ज़ा, यानी जो है अब वो बच्चे की विलादत की घड़ियां करीब आ रही है। तो फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला ने फरमाया इस वजह से वो आवाजें आ रही है, वो दर्द की आवाजें आ रही। तो फारूक आजम ने उस वक्त काबन से कहा कि देखो कोई और औरतें तुम्हारे साथ उस
झोपड़ी में नहीं है, फरमाया कि मेरी औरत तने तना है, इस वजह से वो दर्द और तकलीफ में है। तो फारूक आजम रजी अल्लाह तआला ने अपना तारुफ नहीं किया उस शख्स के सामने, फौरन अपने घर की तरफ गए, दौड़ते हुए गए, रात का वक्त था, और जब अपने दरवाजे पे दस्तक दी, आपकी अहलिया हजरत मौलाए कायनात सय्यदना अली की नबी तालिब करमल्लाहु वजह करीम की डॉक्टर हजरत जो है उम्मे कुलसूम रजी अल्लाह तआला अन्हा ने आपने फरमाया क्या बात है मेरे सरताज, फरमाया कि फला जगह पर जो है एक देहाती खातून है और वो एक झोपड़ी में है और दर्द ज़ा उसको हो रहा है, उसकी बच्चे की जो है विलादत की घड़ियां करीब है, वो खातून तन्हा है, क्या तुम मेरे साथ चलोगी? तो उस वक्त जो है फारूक आजम रजी अल्लाह तआला अन्हु की ज़ौजा हजरत मौला कायनात की साहिबजादी उम्मे कुलसूम रजी अल्लाह तआला ने फरमाया ठीक है मैं चलने के लिए तैयार हूं। आपने जरूरत के लिए जो सामान था वो सामान को अपने साथ रख लिया, कपड़ा वगैरह जो है ना, क्योंकि उस वक्त में इस्तेमाल में आने की जितनी चीजें थी आपने वो रख लिया। फारूक आजम रजी अल्लाह तआला ने गल्ला, धान, चावल और जो है बहुत गोश्त वगैरह और जो है एक बर्तन वगैरह सारी चीजों को आपने उठा लिया। फौरन जो है अपनी अहलिया हजरत उम्मे कुलसूम रजी अल्लाह तआला अन्हा को लेकर आप जो है उस मकाम पर पहुंचे और उस वक्त में जो है उस झोपड़ी के अंदर आप दाखिल होने के लिए आपने फरमाया कि दाखिल हो जाओ। उसके बाद भी कुछ ही देर के बाद जो है वो औरत को जो है एक खूबसूरत लड़का तवल्लुद हुआ। उसके बाद हजरत उम्मे कुलसूम रजी अल्लाह तआला अन्हा आप बाहर आई अपने काबल हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि जाओ वो अरबी देहाती से, ऐ अमीरुल मोमिनीन, ऐ अमीरुल मोमिनीन, आप उस अरबी देहाती से कह दो अल्लाह ने उसे बेटा अता फरमाया। तो वहीं पर करीब बैठा वो जो अरबी देहाती था, उसने जब हजरत उम्मे कुलसूम रजी अल्लाह तआला अन्हा की जबान से फारूक आजम के नाम से पहले जो है अमीरुल मोमिनीन का जब लक़ब सुना तो वो शर्मिंदा हो गया कि भाई इतने बड़े खलीफा वक्त और उनकी अहलिया मेरी मदद के लिए पहुंची है, मेरी अहलिया की मदद के लिए पहुंची है। तो उस वक्त में जो है वो शर्मिंदा होकर नादिम होकर हजरत फारूक आजम रजी अल्लाह तआला से माजरत तलब की। फरमाया कि तुम अभी जो है इस वक्त फारूक आजम रजी अल्लाह ने क्या किया, आग जलाई, चूल्हे पे बर्तन हंडी रखा, आपने बर्तन रखा, गोश्त डाला, चावल डाला। उसके बाद जब खाना बन गया आपने जो है उस अरबी देहाती से कहा कि देखो तुम अपनी अहलिया को ये जो गोश्त का सालन है, ये खाना वगैरह है, इनको खिलाओ, उनको कुव्वत की जरूरत है। उसके बाद फारूक आजम रजी अल्लाह तआला अन्हु अपनी ज़ौजा हजरत उम्मे कुलसूम रजी अल्लाह तआला अन्हा के साथ जो है आप अपने घर की तरफ आए और रात में निकलते वक्त उस अरबी देहाती से कहा कल सुबह तुम मेरे पास आना, जो तुम्हारी जरूरत है अल्लाह रब्बुल आलमीन ने चाहा उसकी तौफीक से हम तुमको जो देना चाहते हैं वो देकर तुमको रवाना कर देंगे। दूसरे दिन सुबह में वो देहाती जो है आपके दरबार में हाजिर हुआ। फारूक आजम रजी अल्लाह तआला अन्हु ने जो है काफी गल्ला और काफी माल देकर जो है ना उसको रवाना फरमाया। सुभान अल्लाह, क्या अज़मत और शान है हजरत फारूक आजम की और हजरत जो है ना उम्मे कुलसूम रजी अल्लाह तआला अन्हा की। देखिए ये मौलाए कायनात सय्यदना अली इब्न अबी तालिब की शहजादी हैं, फारूक आजम रजी अल्लाह तआला अन्हु की ज़ौजा है। कैसी जो है जिंदगी आपने गुजारी, कैसी सोच, कैसी बूझ, कैसी सलीके शिआर की और कमाल दर्जे का जो है आपका मकाम था कि जो आपने हजरत फारूक आजम रजी अल्लाह तआला अन्हु के साथ ऐसी बेहतरीन जिंदगी आपने बसर फरमाई। हजरत फारूक आजम रजी अल्लाह तआला अन्हु के वफात के बाद यानी फारूक आजम से दो औलाद हुई, हजरत ज़ैद और एक साहिबजादी हजरत रुक़ैया, ये दो औलाद। उसके बाद में जो है रिवायतों में आया है कि आपका निकाह जो है ना सईद बिन आस से हुआ। बाद में रिवायत में कि हजरत इमाम हसन मुश्तबा उस निकाह से तैयार थे, मगर इमाम हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु जो है वो अपनी बहन के उस निकाह से जो है दूसरे निकाह से अब तैयार नहीं थे, सईद बिन आस से जो निकाह हुआ था। तो उसके बाद में हुआ है कि जब निकाह की तारीख हुई उसके बाद में जो है एजाब व कबूल के वक्त में जो है हजरत सईद बिन आस रजी अल्लाह तआला अन्हु को मालूम हुआ कि हुसैन इस निकाह से राजी नहीं है। तो आपने फौरन उठकर कहा कि मैं इस निकाह करने के लिए तैयार नहीं हूं क्योंकि हुसैन राजी नहीं है। आपने उस वक्त में जो है हजरत उम्मे कुलसूम रजी अल्लाह तआला अन्हा से जब निकाह के लिए जो आपने जो महर बांधा था तकरीबन 1 लाख आपने जो है उस महर को दाखिल कर दिया था। लेकिन जब इमाम हुसैन की नाराजगी का इल्म हजरत सईद बिन आस को मालूम हुआ, तारीख में ये बात मौजूद है, आपने खड़े रखकर फरमाया कि मैं अब जो है निकाह नहीं करूंगा क्योंकि हुसैन राजी नहीं है और मैं 1 लाख महर वापस भी नहीं लूंगा क्योंकि ये अहले बैत अथार है, ये ऐसे अजीम नुफूस कुदसिया है, मुझे खिदमत का मौका हासिल हुआ है। तो लिहाजा जो है बाद रिवायतों में आया कि सईद बिन आस से आपका निकाह नहीं हुआ, किसी ने लिखा कि सईद बिन आस से आपका निकाह हुआ। तो अलगर्ज नाज़रीन सामाईन मोहतरम, हजरत उम्मे कुलसूम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की जिंदगी बड़ी अहम तरीन जिंदगी है जो आपने फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के साथ गुजारी है। सय्यदा कायनात खातून जन्नत फातिमा ज़हरा की दूसरी साहिबजादी हैं, हसन व हुसैन हजरत ज़ैनब की जो है आप बहन हैं और अल्हम्दुलिल्लाह ये शर्फ हासिल रहा कि नाना जान मोहम्मद रसूलुल्लाह
غزوہ بدر میں حاضر ہیں، اور حضرت خاوند آپ کے فاروق اعظم وہ بھی غزوہ بدر میں حاضر ہیں، اور آپ کے والد بھی جو ہے غزوہ بدر میں حاضر ہیں۔ اس لیے جو ہے بعض اقوال میں یہ بات ملتے ہیں کہ جو ہے حضرت عمر فاروق کے بیٹے جو ام کلثوم سے ہوئے، وہ خود کہتے ہیں، ان کے بیٹے زید کہتے ہیں کہ زید بن عمر کہا کرتے تھے میرے ابا جان خلیفۃ المسلمین تھے، میرے نانا جان خلیفۃ المسلمین تھے۔ ابا جان سے مراد فاروق اعظم ہے، اور نانا جان سے مراد مولائے کائنات سیدنا علی بن ابی طالب کرم اللہ وجہہ الکریم ہے۔ روایت میں یہ بات موجود ہے کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح جو ہے ماہ ذوالقعدہ میں حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ساتھ 17 جو ہے نا ہجری میں ہوا تھا، اور جو ہے آپ کی جو وفات بھی ہوئی حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی جب وفات ہوئی تو وفات کے دن آپ کے صاحبزادے حضرت زید بھی جو ہے ایک ہی دن ماں اور بیٹے دونوں کا وصال ہوا۔ حضرت ام کلثوم کا وصال جس وقت ہوا اسی دن جو ہے نا حضرت جو ہے نا زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا۔ کسی نے کہا حضرت زید کا وصال ہوا تو حضرت ام کلثوم کا وصال ہوا، ایک ہی دن جو ہے دونوں کی وفات ہونے کی بھی تاریخ میں یہ بات موجود ہے۔ یہ چند باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں 10 بار دعاؤں، پروردگار عالم اہل بیت رسول اللہ کے اس معزز خواتین کی سیرت کو پڑھنے اور جو ہے ان کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وما علینا الا البلاغ، آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔